Hey, what is up, guys? Welcome back to another inspiring episode of Insights That Inspire. And today we have a very special guest, very inspiring guest on the show. Her name is Monica Goyal, and she is a life coach, inner child healer, and cord cutting expert. And she helps people to come out of trauma, like childhood trauma and old identity, old patterns that they are carrying since their birth and even before that, and they are facing so many emotional problems. They are not able to handle it, and that's why their personal and professional life is getting bothered a lot. So if you're facing any kind of issue, then this podcast is absolutely fit for you. Make sure to watch this podcast till the end. And Monica, welcome to the podcast. I am super duper excited for this episode, and I'm pretty sure that this is going to be super amazing because the kind of knowledge and experience you have, it is very rare. So thank you so much once again for accepting the invitation. I'm super duper excited. Are you? Yes, Mohit, thank you so much for inviting me in this podcast. I'm also super excited. Maybe our talk can help someone. Definitely. And this is exactly is the goal. Like we can help and inspire the Yeah. generations and those people, who are going to watch it. So Monica, this is my first question. Like as you are a coach, a life coach, emotional mastery coach, you help people to manage the emotions. You are a healer also. You help them to, heal their inner child bounds. So how your journey got started? Like, was there any turning point in your life or any personal experience which made you feel like, okay, this is something you are meant to do? Yes, Mohit, actually, I was a homemaker, and you know जी. that हमारा conditioning ऐसा होता है since childhood कि we used to give so much to others and in return very less, breadcrumbs like we receive in return. And I was always a overgiver. I was always very emotional person. I was like कि I was not able to speak. I was that kind of person. And I used to attract emotionally unavailable people in my life in every area, be it friendship, be it relationships, everywhere. I saw like I am only and only giving. I'm not Mm-hmm. receiving in return. So one fine day, I was like कि that's enough now. अभी हो गया बहुत. मेरे जो भी voids हैं, जो भी चीजें हैं, I'll fulfill them by my own. अब मुझे बाहर से कहीं से कुछ नहीं चाहिए. एंड दैट वाज द टाइम जब मुझे हीलिंग्स का कुछ भी पता नहीं था. आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग अबाउट इनर चाइल्ड हीलिंग. व्हाट इज इनर चाइल्ड हीलिंग, ये होता क्या है. आई वॉज कंप्लीटली ब्लैंक. बट आई डिसाइडेड एंड एज वी से कि जब हम कुछ चीज को ठान लेते हैं, डिसाइड करते हैं, तो यूनिवर्स हमको सपोर्ट करता है. So that was the time when I decided. I was just scrolling the Instagram and I got some page related to inner child healing boot camp. I was like कि चलो करके देखते हैं क्या है. Then I attended it for 5 days and I got so many answers कि what I am going through, मेरे जो भी इमोशनल पैटर्न्स हैं, जो चीज़ें भी हैं, वो आ कहाँ से रही हैं. Then I did that inner child healing program, and that inner child healing program changed my life completely. Completely 360 degree, I changed my life with this inner child healing. And I worked on myself for 2 years for all the healings and everything. Then I thought, now I can help other people also. So it is Then, something that first you transformed yourself and now you are working on, like you converted, your pain into purpose, and now you are yes, helping others also, which is very incredible. So can yes. you Even just, after doing this inner child healing, I felt जी, that I found my purpose. Before that, जी. I was completely clueless what I have to do, why I'm living, like everything. Yeah. And the fact is that people need it. काफी Yes. सारे लोग हैं जो बचपन में कई बातों को लेकर, मतलब उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो बचपन में कही हुई बातें उनको कितना ज्यादा इफेक्ट करती हैं जब वो बड़े होते हैं, Yeah. पर्सनली भी, प्रोफेशनली भी, रिलेशनशिप में भी, काम में, हर जगह वो इफेक्ट डालते हैं। लेकिन वो सिग्नल्स को नहीं समझ पाते हैं, वो समझ Hmm. नहीं पाते हैं कि उनके साथ वो प्रॉब्लम भी है, वो अवेयरनेस ही नहीं होती है। सो Yes. यही मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि क्या वो सिग्नल्स हैं किसी भी इंसान को देखने चाहिए, समझने चाहिए कि लाइक इफ दिस इज हैपनिंग, देन दे शुड अंडरस्टैंड दैट दे नीड हीलिंग। Yes. See, Mohit, if you are, continuously, your sometimes your reactions are bigger than the situations.
यू फील, यू गेट ट्रिगर्ड एंड यू फील लेटर, यू फील रिग्रेट कि बहुत छोटी सी बात थी एंड आई ओवर रिएक्टेड। हम्म। तो वो ट्रिगर्स होते हैं जो हमारे बचपन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से वी गेट ट्रिगर्ड विद दोज थिंग्स। one is this, and second is emotionally unavailable people you keep attracting. And you feel guilt when you are not when you want something for yourself। आपको रेस्ट करने में गिल्ट फील होता है, आपको ऐसा लगता है मुझे हर टाइम कुछ ना कुछ करते ही रहना है। एंड यू यू फील समटाइम्स, यू फील यू हैव टू डू एवरीथिंग परफेक्ट। अगर आप सब कुछ परफेक्ट करोगे तभी का प्यार आपको मिलेगा, लोगों की अप्रिसिएशन, अप्रूवल आपको मिलेगी। एंड इमोशनली आप इतना एग्जॉस्ट हो जाते हो इन सब चीजों को करते करते, एंड यू आर नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट आंसर कि फ्रॉम वेयर ऑल दीज थिंग्स आर कमिंग एंड व्हाट आई नीड टू डू। सो या। इफ यू आर, कई लोगों का फियर होता है डोमिनेंट इमोशन, लाइक आई वॉज वेरी फियरफुल व्हेन आई वॉज बिकॉज समटाइम्स पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, उसकी वजह से बच्चों के अंदर वो फियर हो जाता है, तो वो हर चीज को करने में, कोई भी चीज स्टेप लेने में, इवन राइट थिंग्स भी बोलने में दे गेट स्केयर्ड। तो कई लोगों का फियर इमोशन होता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाते। कई लोगों का सेल्फ सैबोटेजिंग होता है कि वो हर चीज को चलो ठीक है कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से यू कैन गेट टू नो दैट यू नीड दिस इनर चाइल्ड हीलिंग। एंड काफी सारे लोगों को ना समझ ही नहीं आता ये इनर चाइल्ड हीलिंग होती क्या है, क्योंकि हम इस टॉपिक पर बात यस। कर रहे हैं। सो इट इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको क्लियर हो जाए ये होती क्या है एग्जैक्टली। सो कैन यू जस्ट एक्सप्लेन इट in bit more detail what exactly is inner child healing and why it is so important, to heal ourselves? यस, सी, इनर चाइल्ड हीलिंग इज बेसिकली टू हील आवर चाइल्डहुड ट्रॉमास। ट्रॉमास ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ आपके साथ बहुत कुछ गलत हुआ हो, या कुछ फिजिकल अब्यूज हुआ हो, या फिर कुछ बहुत एक्सीडेंट या ऐसा कुछ। चाइल्डहुड ट्रॉमास कैन बी वेरी स्मॉल स्मॉल। एंड जिस तरह से कोई भी बच्चा उन चीजों को लेता है, मान लो आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, लाइक टू सिबलिंग्स हैं, दे आर इनटू सेम फैमिली, and some death happened. Suppose their grandmom died, and one sibling is very attached to her grandmom, and other one is like okay। तो एक के ऊपर उसका इतना इम्पैक्ट पड़ता है कि वो बहुत ज्यादा इमोशनली एंड बहुत ज्यादा उन चीजों को ले लेता है। दैट इज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर दैट चाइल्ड। एंड द अदर वन थोड़ा टाइम के बाद भूल जाता है, या उसको इतना फर्क नहीं पड़ता। तो कोई भी बच्चा किस चीज को किस तरह से लेता है उस पर डिपेंड करता है ये। और एक चीज ये कि वेदर वी आर 20 years ओल्ड और वेदर वी आर 70 years ओल्ड, जो हमारे अंदर का इनर चाइल्ड होता है दैट नेवर ग्रोज ओल्ड। सो Yeah. वट एवर ट्रॉमास, वट एवर बिलीव्स, वट एवर थिंग्स, वट एवर नेगेटिव थिंग्स हैपन इन योर चाइल्डहुड, वो आपके साथ हमेशा रहती हैं until you heal all those things। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप उन्हीं एनर्जी से अपनी लाइफ में लोगों को अट्रैक्ट करते हो, अपनी अपना करियर, अपनी मनी, अपनी हर चीज को आप उन्हीं एनर्जी से अट्रैक्ट करते हो। तो इसीलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लाइफ के किसी भी एरिया में स्ट्रक हो, बी इट रिलेशनशिप, करियर, मनी, हेल्थ, देन यू शुड एटलीस्ट know about this ki from where all these things are coming। And in inner child healing we go to the root of all those things, from where these things are coming, and we heal them from the root। Nice, nice. And Yeah। how this inner child bounds, ये जो patterns होते हैं, how exactly Hmm. does it impact our relationship? Yes। Yes, because if a child feels in his or her childhood, if he feels that I'm not lovable, या some विद एनी रीजन, अगर उसके पेरेंट्स इमोशनली अवेलेबल नहीं हैं, तो दैट चाइल्ड स्टॉप एक्सप्रेसिंग his or her love to other people। They stop expecting love, they feel that I'm unloved, I'm not enough, I can't be loved, I can't attract all those things in my life which I deserve या which I should deserve। तो वो सब चीजें होती हैं जिनकी वजह से लोग उन चीजों को कंटिन्यूअसली, उन पैटर्न्स को कैरी करते हैं।
और वो पैटर्न्स बार बार रिपीट होते हैं। आप इमोशनली अनअवेलेबल लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो, आपको कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप लाइफ में उसको ले नहीं पाते हो, क्योंकि आपको डर लगता है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं ये मेरे लिए है भी कि नहीं, बिकॉज आई एम नॉट दैट गुड इनफ। मेरे पापा ने तो एक बार बोला था कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई कांट डू एनीथिंग, तो हाउ कैन आई गेट दिस। तो उन्हीं थॉट्स की वजह से, उन्हीं अपनी एनर्जीज की वजह से हम वो अपॉर्चुनिटीज लाइफ में खो देते हैं। Yeah, समटाइम्स यू आर नॉट एबल टू टेक किया। बिल्कुल। सो अभी तक आपने जैसे काफी सारे लोगों की हेल्प की है, यू नो, टू हेल्प देम गेट हील, ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ। सो कैन यू जस्ट शेयर वन ऑफ योर क्लाइंट, स्टोरी और केस स्टडी विदाउट रिवीलिंग their identity? कि like यस। before working with you, what was their situation, and after working with you, what exactly their situation is now, like what kind of transformation they got? Yes. See, Mohit, I don't know, because maybe was a homemaker before this. So most of the times I attract homemakers, you Yeah. know, who have so many issues related to their in-laws, their husbands, their kids, and they feel worthless. Even after giving their one of my client was, she was into this marriage since last 22 years, and she felt that I'm worthless. I feel I'm only giving and giving and not getting in return if anything. And my husband is not respecting me. My in-laws takes me for granted. My kids don't feel that I am something. So she was like that only. Then I told her ki, because you don't love yourself, you don't care for yourself, you are only giving and giving. When we did all these inner child healings and everything, she completely came out of all these things. She was able to set her boundaries, ki now I don't have to overgive, I don't have to over do I don't have to over exhaust myself. Now I will do whatever I can do, Yeah. and beyond that I will not do anything. And when she started, creating those boundaries and everything, everyone starts respecting her. बिकॉज आप जब बहुत ज्यादा देते हो तो लोगों को ऐसा लगता है शी इज ऑलवेज अवेलेबल। ठीक है, कभी भी बोलेंगे तो शी इज ऑलवेज अवेलेबल, तो लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। बट वेन यू क्रिएट योर बाउंड्रीज की नो, ओनली दिस मच आई एम अवेलेबल, आफ्टर दैट मेरी खुद की लाइफ भी है। एंड when we start loving ourselves, when we start taking care of ourselves, तो चीजें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। हम वो चीजें बाहर से एक्सपेक्ट करना बंद कर देते हैं जो पहले हम हमेशा बाहर से क्रेव करते हैं, कि मैं बहुत ज्यादा करूंगी तो मेरे बच्चे शायद मुझे बहुत ज्यादा प्यार करेंगे, मेरे इन लॉज मेरे को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे। बट ऐसा होता नहीं है। पीपल आर ऑलवेज थैंकलेस। आप Yeah. कितना भी देते रहो, कुछ भी करते रहो, दे नेवर फील ग्रैटिट्यूड, दे नेवर फील थैंकफुल टुवर्ड्स यू। सो समटाइम्स you have to create your boundaries. It's important for each and every person to set those boundaries. या इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऐसा होता है ना कि लाइक जब तक हम किसी को, वी आर द गिवर एंड सडनली वी आर सेटिंग द बाउंड्रीज, सो वी ऑल्सो हैव द फियर कि अगर हम बाउंड्रीज सेट करते हैं तो सामने वाले इंसान को बुरा लगेगा, या फिर पीपल आर्ग्यूमेंट होने शुरू हो जाएंगे कि लाइक आप बदल गए हो, आप पहले जैसे नहीं रहे हो। सो हाउ एग्जैक्टली आपने कैसे मैनेज किया, आपके क्लाइंट्स कैसे इस चीज को मैनेज करते हैं? इन सिंपल वर्ड्स, लाइक हाउ टू मैनेज द बाउंड्रीज, हाउ टू set up these boundaries even without hurting others. Yes, see, Mohit, this is a slow process. We Yeah, can't do okay. it in one day. We have to go step by step. अगर हम आज इतना कुछ कर रहे हैं और सडनली मैं कल बोलती हूँ कि आज मैं कुछ नहीं करूंगी, तो nobody will be able to accept, right? बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज उन्होंने मेरे को इतने साल से इतना सब कुछ करके देखा है। दिस इज अ प्रोसेस, अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जहाँ पे हम धीरे धीरे अपने आप को, और एक साथ हम कर भी नहीं पाते, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ऐसी है कि हम हमेशा लोगों को ओवर गिव ही करते हैं। और हमको हम्म, ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो लोग नाराज हो जाएंगे, या मेरे घर वालों को मेरे से बात करना बंद कर देंगे, या मेरे को प्यार करना कम कर देंगे। तो दिस इज अ प्रोसेस जिसमें हम धीरे धीरे अपने आप से प्यार करना शुरू करते हैं, अपने आप को वो सारी चीजें देते हैं जो हमें कभी नहीं मिली, और जिसकी वजह से वी यूज टू ओवर गिव, वी यूज टू प्लीज अदर पीपल। और जब वो चीजें धीरे धीरे हमारे अंदर सेटल होती हैं, हमारा नर्वस सिस्टम उस चीज के साथ फील सेफ करता है, देन वी स्टार्ट क्रिएटिंग बाउंड्रीज। थोड़ी हम्म, थोड़ी, ऐसा नहीं कि एक दिन में सब कुछ, बट स्लोली स्लोली। एंड वी इन आवर सेशंस एंड एवरीथिंग, आई टीच माई क्लाइंट्स, आई टीच माई students how to do that. Even after completing the sessions, you have everything.
with which you get to know कि from where I have to stop, कहाँ पे मुझे कितना करना है, कहाँ पे अगर मेरे साथ ये लाइफ, बिकॉज सी हीलिंग इज अ नेवर एंडिंग लाइफ लॉन्ग जर्नी। आप 2 3 4 महीने अपने आप पे काम करके आप ये नहीं सोच सकते कि हमेशा आपकी लाइफ बहुत परफेक्ट रहेगी, क्योंकि जब रोज के चैलेंजेस आएंगे, रोज की चीजें आएंगी, तो हम उनको वो टूल्स और वो टेक्निक सिखा देते हैं जिससे दे नो कि दिस इज द सिचुएशन एंड हाउ आई हैव टू कम आउट ऑफ दिस। Hmm. So सो what is the right and step by step way to start our healing journey? yes, see, in our healing, inner child healing, if I say, so inner child healing, we get to know कि चीजें आ कहाँ से रही हैं। First we do our mother's healing, then we do our father's healing. Because why some people also ask this question कि why do we need to heal our parents? This is my healing. I want to heal myself. Why my parents? Then my first step is to tell them that because they are the source, because of them you are into this world. Until and unless you heal your relationship with your parents, you will never be able to achieve that growth, happiness, and success in your life. So, first we heal mother wounds, then we heal father wounds, and after that, I start healing with them. We start their healing journey. उनको पता चलता है कि उनके पेरेंट्स में कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें जो हैं, जो पैटर्न्स हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं। Yeah. हम उनके पेरेंट्स की हीलिंग करते हैं, फिर उनकी हीलिंग करते हैं, फिर उनकी फ्यूचर जनरेशन, लाइक इफ दे हैव किड्स और इफ दे आर अनमैरिड देन इन फ्यूचर। सो वूम हीलिंग एंड इनर चाइल्ड हीलिंग इज अ वेरी वास्ट कॉन्सेप्ट, वेरी वास्ट। womb Yeah. healing we do in this, and parents ki healings and everything, it includes everything, all the healings and everything. And Your up, whole life, your yeah, whole life gets healed when we, get to know this inner child healing and when we do this healing. yeah. आफ्टर गेटिंग हील्ड काफी सारे लोगों को ये लगता है कि जो हमारी प्रॉब्लम्स होते हैं वो परमानेंटली गायब हो जाती हैं। इज इट ट्रू और लाइक व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड आफ्टर हीलिंग? No, as I shared कि permanently गायब नहीं हो सकती, because we live daily, या। right? Like I will give you an example कि suppose हमने गाड़ी चलानी सीखी, जी। हमको जिसने जो भी ट्रेनर था उसने हमको 15 दिन सिखा दिया कि किस तरह से, बट वेन वी एक्चुअली गो ऑन द रोड वी सी कि हाउ वी हैव टू ड्राइव। वहां पे इस सब तरफ से लोग आएंगे, कहाँ पे कैसा रास्ता आएगा, क्या आएगा। जब आप एक्चुअल में रोड पे उतरते हो तब आपको समझ में आता है कि किस तरह से चैलेंजेस को फेस करना है, किस तरह से आपको ड्राइव करना है। सेम इज इन लाइफ ऑल्सो, कि आपकी लाइफ में डेली नए चैलेंजेस आएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 3 4 महीने अपने आप को हील कर लिया तो आपकी लाइफ में कभी लाइफ में परमानेंटली हील हो जाएगी और कभी कोई इशू ही नहीं आएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। आपकी लाइफ में डेली कुछ ना कुछ चीजें आएंगी। तभी मैंने बोला कि इन दिस वी टीच देम टूल्स एंड टेक्निक्स, सो दैट आपको पता है कि आज ये सिचुएशन आई है तो मेरे को इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है। आई नो हम्म। समटाइम्स दे फॉरगेट ऑल्सो, बिकॉज वही है कि जब हम रेगुलर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है देन दे कॉल मी अगेन कि मोनिका दिस इज हैपनिंग। देन आई मेक देम रिमेम्बर कि दिस टाइम यू हैव टू डू। मैंने सब सिखाया हुआ है, मैंने सब बताया हुआ है, बट ठीक है, इट्स ओके, आई एम देयर टू सपोर्ट यू। तो वेन एवर यू फील लाइक कि यस आई एम स्टक हेयर, आई एम नॉट एबल टू फाइंड कि व्हाट आई शुड डू, तो आई अगेन गाइड देम कि दिस टाइम यू कैन डू दिस। आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग, बट वही है कि लोग डेली में भूल जाते हैं। तो मतलब ओल्ड आइडेंटिटी या जो पैटर्न है बाउंड्स है हमारे, वो ट्रिगर तो होते हैं हीलिंग के बाद भी, बट वी लर्न हाउ टू मैनेज देम। ट्रिगर बहुत कम हो जाता है, बहुत हद तक। व्हेन भी उनको हम जब पूरी तरह से हील कर देते हैं काफी हद तक वो कम हो जाता है। बट ठीक है, कभी कभी अगर आता भी है तो वी नो द टेक्निक एंड वी गेट इट ऑफ इट। या ग्रेट। एंड आप कॉर्ड कटिंग एक्सपर्ट भी हैं, राइट? सो कैन यू जस्ट एक्सप्लेन बिट इन मोर डिटेल कि एग्जैक्टली ये जो मॉडर्निटी है, टेक्निक है, हाउ डज इट वर्क एंड कैसे लोगों को हील करने में मदद करती है ये टेक्निक? yes, cord cutting is a very beautiful and magical technique, I would say. Cord cutting, because in this we cut energetic, negative energetic cords with people. Like
see, if now we are talking, sometimes we don't even see, we get connected with phone calls, and we sometimes we feel there are positive chords and negative chords. With positive chords we feel positive vibrations from people, and sometimes there are negative and sometimes we feel कि मेरी तो इससे बात भी नहीं होती, पता नहीं मुझे इसके लिए इतनी नेगेटिविटी क्यों आती है. So your negative chords get connected with that person. And in cord cutting, we cut those cords, not relation. कई बार लोगों का ये बहुत क्वेश्चन आता है कि रिलेशन तो खत्म नहीं हो जाएगा, कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में नेगेटिविटी है, आई वॉन्ट टू कट दैट नेगेटिविटी, बट कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉर्ड कटिंग से रिलेशन खत्म हो जाएगा. इट्स नॉट लाइक दैट. रिलेशनशिप खत्म नहीं होता, सिर्फ आपके बीच में जो नेगेटिविटी है वो नेगेटिव टॉक्सिक कॉर्ड्स कट करते हैं, ताकि आपका रिलेशनशिप अच्छे से और पॉजिटिवली इंप्रूव हो. Okay. So cord cutting works beautifully in all those things. Great. And we were earlier talking about self love, क्योंकि self love भी healing का एक part होता है. So what Yes. exactly self love is? क्योंकि काफी सारे लोगों को misconceptions है self love से related. So can you explain और self love को start करने का सही तरीका क्या है? Yes. See, self love और selfish होने में डिफरेंस होता है. Some people जी. feel कि self love means selfish हो जाना. No. Self love means कि आपको समझ आए कि आपको इस टाइम पे क्या चाहिए. आपको अगर रेस्ट चाहिए तो आपको रेस्ट करना है. आपको अगर ऐसा लग रहा है कि नो, अभी मेरा नहीं कुछ भी करने का मन करना, देन पॉज. गिव योर सेल्फ प्रायोरिटी, लिसन टू योर सेल्फ. अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपनी माइंड को सुनना और उसको समझना, दैट इज सेल्फ लव. ऐसा नहीं है कि आप करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो क्योंकि हमें करना है. नो, इट्स लाइक कि यू हैव टू लिसन टू योर सेल्फ. इफ यू फील दैट यू नीड रेस्ट, देन टेक रेस्ट. इफ यू फील दैट यू डोंट वांट टू टॉक टू समवन, रादर देन यू नो गुस्सा करना या उनके ऊपर बिना मतलब के रिएक्ट करना, गिव योर सेल्फ पॉज. Okay. And yeah, Yeah. And there are some misconceptions also when it comes to healing. काफी सारे लोग तो सुनकर ही डर जाते हैं, क्योंकि उनको जजमेंट का इशू रहता है कि when they will share their things openly with any person whom they don't know at all, so they have the fear of judgment. और काफी सारे और भी misconceptions होते हैं. So how exactly you create a safe place for them, or and also can you talk about some more misconceptions which people have about healing? see, that trust you will have to build. अगर आपके अंदर वो ट्रस्ट ही नहीं है तो आप किसी के साथ भी, अगर आपको अपने आप को हील करना है, तो आपको किसी ना किसी को, जिसके जिसके ऊपर आपको लगता है कि यस यू कैन टेल, यू कैन शेयर, यू विल हैव टू हैव दैट फेथ ऑन दैट पर्सन फर्स्ट. और जब तक आप अपना पूरा इश्यूज, आप अपनी सारी चीजें नहीं बताओगे, तब तक सामने वाला इंसान आपको हील नहीं कर पाएगा या आपको हेल्प नहीं कर पाएगा. जी. और हीलिंग के अंदर ये मिसकंसेप्शंस की बहुत काम करना पड़ता है या ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है. बहुत छोटी छोटी चीजों के साथ भी हम अपने आप को हील कर सकते हैं. बट द थिंग इज कि आपको अपने आप को यस बोलना पड़ेगा, आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि आई नीड दिस. उस चीज का रियलाइजेशन करे बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते. पहला स्टेप वही है कि आपको अपने आप को यस बोलना पड़ेगा कि यस, मेरे साथ कुछ इश्यूज हैं एंड आई वांट सम गाइडेंस और आई वांट टू हील माई सेल्फ. Okay. And if somebody wanna start their healing journey with you, so you can definitely help them, isn't it? So do you offer any free clarity call or free consultation call also? Yes, if someone has any issue, I used to give them free clarity calls also, or I just charge 99 or 199 rupees for clarity calls. If I feel that they have more issues and Okay. to get more clarity, we need to, connect. So on Yeah. Zoom call, I give them 40 minutes clarity call, Great. and in those 40 minutes they get complete clarity of what they want, what they should do, and after understanding all their issues and everything. Great. Great. So if somebody wanna book a clarity call with you, so how exactly they can contact you? Can you just share your Instagram account, user ID, or wherever you are available, or any other social media platform you are using currently where you are super active? Yes, my Instagram ID is Soul Shift with Monica, Okay. and I'm on Facebook also. So anyone can contact me they can DM me, or they can, comment on my reels.
and I'll get back. I definitely get back to each and every comment that I receive. Great. So, guys, if you are facing any kind of, emotional problem, inner child bounds are bothering you, they are hampering your, personal and professional life, your relationship, then definitely you need healing because when you will take it, you will work on yourself, you will see the magic in your life, which would happen definitely. And if you want to start your healing journey, you can contact Monica because she has amazing experience. She's really good in her work. She can definitely help you. And Monica, thank you so much for your time. It was lovely talking to you. You have shared a Thank lot you of so much, insights. Mohit. This Yeah. podcast was very insightful. So, really, thank you for your time. And it was lovely talking to you. Thank you so much. Thank you so much, Mohit, for giving me this opportunity. Yeah, thank you. Thank you.